Welcome to this very special edition of the KJ Masterclass, the show which ensures that you profit from your time spent here with experts either through their industry insights and information or simply learning from them. And what better learning can be than the educator himself? We have today Pankaj Sudan, educator, a top educator, founder of a school. In short, we can say he's been a former civil services officer turned corporate leader, education entrepreneur now, and he will share his thoughts on future of schooling and what it is like to follow your heart and living your dreams. So, sir, welcome to this show. Thank you. Thank you. Yes, Honored to be here. welcome, sir. Welcome. So, my first question will be very simple, and let me start. You have been a civil servant. You are a National Talent Search Scholarship holder, and then you studied chemical engineering. Then you did your MBA from Manila, and then you have held top positions. You also made companies, sold companies for hundreds of crores. You have a very happy family. You yourself have a very stable life. Your wife is also in a very senior, civil servant in the government of India. Anybody at your stage would like to, what I will tell you what I would do. I would be chilling out, make 5 hammocks in my own house, will be in either, Macau, Maldives, or Mauritius, anywhere else. Not doing what you are doing in the education field, muddying your hand, dirtying your hands, seeing a school come up from scratch. Why this? Means what is aisa jazba kya hai, sir? You got to explain Okay. it to us. Share with us, please. First, Ajay, thank you so much again for having me, and I really appreciate. So let's deep dive straight into your question. आपका सवाल काफी वो है. So, with your permission and with the permission of the audience, I Yes. will speak in English and Hindi both, Yes, yes, yes. because a Welcome. lot of my audience are in India and they may not be as comfortable in English, or even if they are, पर कई बातों का जो मजा है वो Yes. हिंदी में ही आता है. तो आपके बिल्कुल सवाल बिल्कुल. का मजा जो है, जो आपका क्वेश्चन है, why did I choose this and why did I forsake a career which was seemingly very beautiful? And no doubt my career was very good. Civil services is, of course, the top ranked, and people die to get into civils. And more than that, even the corporate world, the GEs of the world, or DSMs of the world, or ICICI banks of the world, are top jobs. And they were very convenient and wonderful. And I'm very thankful that I got a chance to serve at all these places. But there was always this thing within me that I wanted to set up a school. But as a middle class person, you always looked for safer bets. Get into civils, get into a corporate world, earn money. But if I have to answer your very intelligent and very in-depth question, एक शेर से आपके आंसर करना चाहूंगा जो बिल्कुल हमारी बिल्कुल वेबसाइट बिल्कुल. पर लिखा हुआ है. तो शेर है, कोई बज्म हो या हो कफस, कोई बज्म हो या हो कफस, या पीरगी का हो दयार, वाह. या पीरगी का हो दयार, जहां रोशनी की कमी लगी वहीं चिराग एक जला दिया. वाह. तो देखिए, वाह. किसी को तो चिराग जलाना पड़ेगा. मैं मतलब आई एम फॉन्ड ऑफ सेइंग दिस, मैं जो भी हूं, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ सम वंडरफुल एजुकेशन. I'm very thankful to the schools I went to, the college, to the university, and to Asian Institute of Management, Manila. Wherever I went, I had some quality education. जैसे आपने बताया कि मैं नेशनल टैलेंट और नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर भी हूँ, Yes, yes, yes. you know, so I realized कि इस गरीब देश में it has given me a lot because of my education. However, I'm also aware of a dichotomy कि Indian education system leaves a lot to be desired. बहुत कुछ इसमें गड़बड़ है. जो रोट लर्निंग है, बोरियत है पढ़ाई की, ये बोर है पढ़ाई, नथिंग इनोवेटिव अबाउट इट, you know. So plus there are biases we don't correct. We have no idea about civic education as rights of a citizen. तो जो क्लास एजुकेशन, जो पढ़ा लिखा जो इंसान होना चाहिए,
तो कई बार मुझे लगा कि उसकी कमी है। तो एक होता है कि यू सिट डाउन इन अ ड्राइंग रूम एंड कर्स द होल वर्ल्ड दैट दिस वर्ल्ड इज बैड, दिस वर्ल्ड इज दिस एंड दे शुड डू। मुझे लगा कौन करेगा अगर करना है तो। If I am convinced that something needs to be done, so I need to take the first step. So I took the first step, and as I rightly said, then I left everything to start a school. तो बेसिकली ये मेरी जर्नी भी और ये आपके क्वेश्चन का आंसर। Right, right. So, sir, tell me one thing. Uh, थोड़ा अपने स्टार्टिंग से बताइए, so that sometimes it is not only what you say, but it is also about so much that one can learn from the journey one undertakes. आपकी जो जर्नी रही है, अगर वो आप बताएंगे तो एक पता चल जाएगा, क्योंकि हर समय पे एक अचीवमेंट रही है। एनटीएससी ले लीजिए, केमिकल इंजीनियरिंग ले लीजिए, उसके बाद सिविल सर्विसेज ले लीजिए, हैप्पी लाइफ, एक फैमिली लाइफ है उसको मैनेज करना, वो ले लीजिए, और उसके बाद सेटिंग अप सम बिग वेंचर लाइक दिस विच ए सोशल पर्सपेक्टिव इन माइंड। हर जगह पे एक लर्निंग है। तो आपकी जर्नी अगर आप बताएंगे तो उसमें हमको पता चल जाएगा काफी कुछ सीखने के लिए, क्योंकि आज जो आप स्कूल सेटअप कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ह्यूज लर्निंग फॉर अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एंड लॉट ऑफ पीपल हु आर मूविंग इनटू, चाहे एडटेक ले लीजिए या किसी भी फील्ड में या प्योर स्कूलिंग सिस्टम में। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फॉर द व्यूअर्स योर जर्नी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सर। Sure. So my parents were teachers. I'm born, brought up in Gurgaon. I'm one of those lucky ones. I am still in the same house where I grew up as a child. That's in Shiva, old part of Gurgaon, that's Shivaji Nagar. My parents were government of Haryana employees and both were teachers. So I got a very strong grounding as a child in formal education because of my parents. जब मैं छोटा सा था, मेरे पापा हम तीन भाई बहनों को नीचे बिठा के तीन तीन चार चार घंटे पढ़ाया करते थे। So I realized that foundation was so critical to my future growth. तो उससे फिर मैं स्पोर्ट्स स्कूल राई में गया। राई इज अ वंडरफुल स्कूल, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, वेयर आई पिक्ड अप द लव फॉर रीडिंग बुक्स। हमारे टीचर थे मिस्टर लुइस, अंग्रेज थे वो, तो अब नहीं है, गॉड ब्लेस हिम, बट उनसे मुझे पढ़ने की प्रेरणा मिली, किताबें पढ़ने। स्पोर्ट्स स्कूल राई से मुझे खेलने की भी वो मिली। आई एम स्टिल अ वेरी कीन एंड एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन। तो लर्निंग जो है ना मेरी वहाँ हुई। फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में गए हम। चंडीगढ़ इज अ वंडरफुल प्लेस। सो कोर्स केमिकल इंजीनियरिंग में मेरा ज़्यादा मन था नहीं, फ्रैंकली। वो पेरेंटल प्रेशर से, या जो आप कहते हैं, विच इज़ अगेन आई सी इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, वी डोंट, बच्चों को इतना सोचने का और वो करने का, एक्सप्रेशन का मौका नहीं देते। बट एनीवे, आई डिड माय केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम विच इज अगेन टॉप कॉलेज इन इंडिया। फिर सिविल सर्विसेज लिखा। तो again, civil services, maybe, I had some wonderful colleagues, seniors, juniors, उन सबसे मैंने बहुत सीखा। So and going to Manila was an eye opener। एक इंटरनेशनल पढ़ाई क्या चीज़ होती है। I learned that in Asian Institute of Management. I saw firsthand what is great quality of education, where you study, you read, you understand, but you never feel as if पढ़ रहे हैं, बोझ नहीं feel। Right. But it can give you the best of learning. Right. Then, of course, I joined ICICI Bank, and ICICI Bank, I saw what a great Indian institution can. How do you build a great Indian institution? Right. ICICI Bank is one of the best. They are, let's say, a city bank at State Bank of India rates. So anybody who's interacted with their technology, with their people, with their professionals, you can only say very good things about ICICI. They are a true world-class Indian multinational. Then, of course, I had the privilege of working in GE, और मैंने GE में बहुत सीखा। GE was the one learning ground where I saw how do you set up processes, what is integrity, real integrity जो होती है। तो कई बार हम कट कॉर्नर्स करते हैं। GE was very very strong on compliance, on integrity, on processes, on issues, on global perspectives. How एक इतनी बड़ी कंपनी के जितने सीनियर ऑफिसर्स थे, आई सॉ द चेयरमैन, माय ओन बॉस बिकेम द चेयरमैन ऑफ जीई, मिस्टर जॉन फ्लैनरी, बट आई सॉ फर्स्ट हैंड व्हाट इज रियल ह्यूमिलिटी आल्सो।
एक फेक ह्यूमिलिटी होती है, रियल ह्यूमिलिटी यू लर्न व्हेन यू सिट विद दीज ग्रेट लीडर्स. Then of course I worked with a wonderful company called DSM, which is a Dutch multinational. तो मैंने यूरोपियन और अमेरिकन और इंडियन तीनों मल्टीनेशनल में काम किया है. You know, plus setting up the school. Now in 2014 I decided to leave everything. तो 7 साल हो गए हैं, 5 साल. इसमें मेरी जर्नी में, जैसे न्यूटन ने कहा था, आई स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ ग्रेट मैन. So I'm not alone. There are 24, 25 very accomplished people. IAS ऑफिसर्स हैं, IITians हैं इसमें, हमारे एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के मेरे कॉलीग्स हैं, मर्चेंट नेवी के ऑफिसर्स हैं, यू नो, वेरी स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं. So people who were first generation entrepreneurs came from ordinary families like mine, and together हम सब ने change maker society बनाई, and we started this school. So my journey is, of course, and 2 minutes on my family. My wife is an IAS officer, as you mentioned. She's in Bombay. I have 2 very smart sons. दोनों अमेरिका में इस समय, and they studied in Rishi Valley School. तो मैंने उस स्कूल से भी बहुत सीखा है जहाँ मेरे बच्चे पढ़े. Now my elder one went to Cornell, तो वो देखा. Manisha went to Harvard, my wife went to Harvard, तो वहाँ देखा मैंने कि हार्वर्ड क्या भला है. तो यू नो, एंड प्लस आई लव ट्रैवलिंग. मैं बहुत घूमता हूँ, मुझे बहुत शौक है, चाहे ऑटो में चले जाओ, चाहे हवाई जहाज में, 5 स्टार में, जंगल में. सो देयर आर सो मेनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज व्हेन यू गो एंड सी द वर्ल्ड. कि हमारी छोटी सी एक दुनिया है, यू नो, वी ओन दिस वर्ल्ड टुगेदर. सो देयर आर नो बाउंड्रीज. You know, you find smartness everywhere. You find people who will talk nonsense everywhere. तो मैंने हर जगह लर्निंग एटीट्यूड्स देखे हैं, अपॉर्चुनिटीज देखी हैं, लोगों के साथ बहुत इंटरेक्शन मेरा रहा है, जैसे मैंने बताया. तो आई हैव लर्नड ऑल दीज वेज. दिस इज माय लाइफ जर्नी. राइट, राइट. सर एक चीज बताइए, अभी आपने ह्यूमिलिटी की बात की, मैं आपके स्कूल के ऊपर भी अभी आऊंगा, एजुकेशन सिस्टम पे बातचीत करूंगा. बट as an achiever, I want this message to go across a lot of people in the country. As an achiever, you still manage to be the humble person that you are. And you don't get to see a lot of it nowadays. You get to see, but how do you manage to be humble and still be an achiever? ऐसे मतलब ये कैसे मैनेज करते हैं? And what is your tip to a lot of people who, you know, suddenly get influenced by whatever little achievement and then they go astray, रास्ता भूल जाते हैं. So पहला तो at the outset, Ajay, I tell you very clearly, I'm not an achiever of that scale. I'm trying my best. Of course, I have done some good things, no doubt. But ये तो ये कह लीजिए, maybe my aims are bigger. मैं कहता हूँ अगर नेशनल टैलेंट हो तब भी क्या है, so what? 150 people at that point, अब जो ज्यादा होते हैं, पर जब मैंने क्लियर किया था इंडिया में 150 बच्चों को मिलता था. So what? There were 149 others, and year on year किसी को मिलता है. उनको तो नोबेल ले आए. मैं नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा तो क्या, भारत रत्न भी मिल जाएगा तो क्या, हर साल मिलता है. So you got to keep, maybe I believe always, मेरे एम्स बहुत बड़े हैं. मान लो दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल बन जाएगा था प्लेनम स्कूल, so what? So what? It's okay. It's okay. You know. So secondly, I've seen real achievers. मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, but real achievers मैंने कई देखे हैं. I can name them. संदीप बख्शी साहब हैं, ICICI बैंक के. He's the CEO, MD. I've seen him. Such a humble personality. IAS में मैंने बहुत लोग देखे हैं. ज़्यादातर तो नहीं होते, पर कई इतने मिले मुझे humble और really good people. आप इंडियन पॉलिटिशियंस में बहुत लोगों को देखते हैं, काफी बहुत humble लोग. मेरे मॉडल, आई लव गांधी जी. मैं गांधी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ. तो रियल ह्यूमिलिटी, तो भाई बापू ने जब कपड़े भी त्यागे होंगे, वो असली ह्यूमिलिटी होती है. यू नो, वन, ऑफ कोर्स अगेन आई विल रीफ्रेज कि मैं इतना बड़ा, मैं ठीक ठीक हूँ. आई हैव डन फाइन इन लाइफ. यस, आई एम थैंकफुल वेयर आई केम. So, but also my objectives and aims are much higher. And even then, हम यही कहेंगे ठीक है, it's okay. Now, why I ask this is, sir, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं across the country. तो क्या होता है कि from both perspectives I ask this question कि अचीव कर लिया, क्योंकि बच्चों पे भी बहुत प्रेशर है. अचीव कर लिया,
तो भी कोई बात नहीं, सो कॉल्ड जो हमारे पैरामीटर्स हैं सोसाइटी के, और नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज आप कुछ और अचीव करोगे। उस मामले में मैं आपका बेसिकली आपकी बात समझना चाह रहा था कि लोगों को आप कैसे बोलेंगे इस चीज के बारे जी जी। में, तो स्पेशली फ्रॉम कि अगर कर लिया तो भी ठीक है, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज है करने को। हम्म, तो मैं बता रहा हूँ ना, एक तो देयर इज इनफ एज यू राइटली सेड, बहुत कुछ है तो आप बहुत किले अपने फतेह करने हैं, तो अपने लिए मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि व्हाट हम्म। यू नो हाउ आई थिंक अबाउट ह्यूमैनिटी, हाउ आई थिंक अबाउट व्हाट एम आई सपोज टू डू, एंड आई कैन बी ब्लंट, मैं काफी ब्लंट हूँ, स्ट्रेट हूँ, ऐसा नहीं है। ह्यूमैनिटी डजंट मीन आई एम अ पुश ओवर, wherever my views I have to put across, I put them across very strongly. राइट। बट जब मैं देखता हूँ कि मेरे को क्या चीज अपने अपने आप के बारे में अगर मैं सोचूंगा, तो मैं जब सोचने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को एक आंसर मैं आपका एक गालिब के शेर में ही देना चाहूंगा। राइट राइट राइट। वो गालिब का बहुत सुंदर शेर है, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। वाह। मैंने यही सोचा था अपने लिए कि मैं अपने आप को कहता रहता हूँ मैं ये हूँ मैं हूँ, अरे मुझे अगर एजुकेशन सिस्टम चेंज करने की कोशिश करनी है तो करना है। It's okay to be a GE guy. It's okay to work in ICICI or civil services. Fine. पर अगर करना है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, अगर आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या, कि अगर जान है मेरे अंदर तो मैं स्कूल ही बना के दिखाऊंगा, बिकॉज कि मैंने ठान लिया और अच्छा स्कूल बनाऊंगा, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन तय करूंगा जहां जेन्युइनली हम क्रिएटिविटी सिखा सके, वेयर वी कैन टेल चिल्ड्रन इट्स ओके, गो फॉर द स्टार्स। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे, गो रीच द हाईएस्ट पॉसिबल पोटेंशियल दैट यू हैव, बट ऑल्सो रियलाइज दैट्स ओके, ट्राई फॉर द वेरी बेस्ट। आप ओलंपिक मेडल विनर बनिए, आप ये बनिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, एक नया रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ा करिए, प्लीज गो अहेड, डू इट, be very happy doing it, but also realize that's okay if you do it, it's okay। कल को दूसरी रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ी हो जाएगी, एक दूसरा ओलंपिक चैंपियन आ जाएगा, इट्स ओके। सो आई थिंक आई होप आई ट्राइड टू आंसर योर क्वेश्चन। सो यस सर, यस सर, वेरी वेल वेरी वेल। तो आते हैं स्कूल पे सर, लेट्स आस्क अबाउट द प्लेनम स्कूल। व्हाई डू यू कॉल इट द बेस्ट इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल इन इंडिया, एंड वो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, क्या है, कैसे है, जो कैम्ब्रिज सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो आपने लागू किया है, बिकॉज हमने सीबीएसई, आईसीएसई और आईबी, इन सब चीजों के बारे में तो सुना है, बट जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस होल कंसेप्ट। पहला तो हर एक माँ को अपना बच्चा अच्छा लगता है ना, तो मुझे भी प्लेनम अच्छा लगता है हमेशा, बट सीरियसली मैंने जब सोचा था, मैंने कहा आपने जैसे शुरू में मेरे बैकग्राउंड में बताया, आई वॉज हैप्पीली सेटल्ड वर्किंग इन मल्टीनेशनल, बढ़िया नौकरी होती है, बहुत अच्छी नौकरी होती है आपको, तो झमेला पाला ही क्यों मैंने स्कूल का, और वो जंगल में डाला है मैंने स्कूल हिमाचल प्रदेश के, मेरा कोई हिमाचल से लेना देना भी नहीं है, बहुत दूर पड़ता है, कमर टूट जाती है वहां जाने में, पहाड़ों में सुंदर तो है बस तंग हो। लेकिन फ्रैंकली जब मुझे लगा कि जब मैं झमेला पाल ही रहा हूं तो मुझे सुंदर ही स्कूल बनाना है, तो सुंदर अच्छा, पर एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर भी होने चाहिए। So I have for myself put 5 parameters which I think qualify कि प्लेनम स्कूल सबसे सुंदर और बढ़िया स्कूल क्यों है। Not because it is I have set it up along with my dear friends. The प्लेनम स्कूल की 5 आपको बातें बताता हूँ। पहला, राइट राइट, बेस्ट फाउंडर्स। आप ओके, मैं my as I told you, my objectives, my aims, my comparisons are all always world class। आप देखिए स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कोई भी स्कूल इंडिया में, डीपीएस, बुलाना ठिकाना कुछ भी खोल लीजिए, सब फैमिली ओन्ड हैं, ऐसे हैं, सिंगल बंदे का चलाया हुआ है, एक भी ऐसा नहीं है जो हमारे जैसे फाउंडर्स हैं। भाई वुडस्टॉक स्कूल है, 35 लाख रुपए फीस लेता है, लेकिन मिशनरी स्कूल का, मिशनरीज ने स्कूल किया। धीरू भाई अंबानी बॉम्बे में है, लेकिन धीरू भाई अंबानी का, वो मुकेश अंबानी की वाइफ का स्कूल। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन स्टैनफोर्ड ने या हार्वर्ड साहब ने शुरू किया।
हमारे जैसे लोग इतने डिस्पैरेट जो डिफरेंट हैं, वी आर नॉट रिलेटेड टू वन अनदर, ऑल ऑफ अस आर क्वालिटी हाई क्लास पीपल, और उससे बच्चों को फायदा होता है। हमारे Right. बच्चे जब इन लोगों से, आईएएस ऑफिसर से, एक मर्चेंट नेवी के ऑफिसर से, एक एंटरप्रेन्योर से, एक आईटी के बंदे से, एक सिविल सर्वेंट, एक पॉलिटिकल लीडर, एक सोशल बंदे से इंटरेक्ट करते हैं, दे अंडरस्टैंड जीवन क्या है। At least I'm giving them a wonderful platform. So wonderful founders पहला, दूसरा Hmm. Hmm. वंडरफुल टीचर्स, क्योंकि Okay. स्कूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी से बनता है, सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी से। तो मैंने जब देखा, तो मैंने जब शुरू में बताया कि आई वाज वेरी डिससैटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड टीचर्स इन इंडिया। तो अपने टीचर्स का मैं बहुत काम करता हूँ। ओनली थिंग आई लुक फॉर एंड आई एक्सपेक्ट आवर टीचर्स इज अ विलिंगनेस टू लर्न। Right. पढ़ाने से पहले आपको लर्नर होना पड़ेगा। तो हमारे टीचर्स जो हैं, दे आर दे हैव द एटीट्यूड to learn, and I believe attitude will trump aptitude every time। अगर एटीट्यूड आपका अच्छा है, लर्निंग एटीट्यूड है, टीम Hmm. वर्क Hmm. वाला आपका एटीट्यूड है, वेयर यू आर हैप्पी फॉर योर कॉलीग, ठीक है आज कॉलीग अच्छा कर रहा है तो वंडरफुल, वी शुड क्लैप। तो आई एम, एंड प्लस वी आर ट्राइंग टू ट्रेन आवर फैकल्टी इन सच अ यूनिक फैशन कि इससे अच्छी फैकल्टी किसी स्कूल की। तो सेकेंड पॉइंट इज फैकल्टी, ग्रेट फैकल्टी। थर्ड पॉइंट लोकेशन, क्योंकि पढ़ाई जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। देखिए गुदड़ी के लाल मिल जाएंगे, बहुत गंदे स्लम्स में भी चैंपियन स्टूडेंट हो सकते हैं या एजुकेशनिस्ट हो सकते हैं, नो डाउट, पर वो कम होता है। सो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट इन अ जंगल, वो चारों तरफ बहुत हरियाली है, बहुत साफ सुथरा मौसम है, 3 बसें पूरे दिन में आती हैं, जीरो पॉल्यूशन है। तो माई बिलीव इज, जैसे हमारे ऋषि मुनि पहले टाइम पे पहाड़ों में जाके, जंगलों में जाके मेडिटेशन करते थे, दैट इज वाई द लोकेशन इज वंडरफुल। बहुत दूर भी नहीं है, बहुत ठंड भी नहीं है, बहुत गर्मी भी नहीं है, ब्यूटीफुल भी है, रोमांटिक भी है, सराउंडेड बाय हिल्स एंड ब्यूटीफुल ट्रीज ऑल साइड। So location. Fourth, see, as I again repeatedly say, my aims, my parameters are all global. ये पूरी धरती हमारी है, वी Hmm. बिलोंग टू द होल वर्ल्ड। तो मैंने कहा Right. सबसे अच्छा बोर्ड लेके आऊंगा मैं दुनिया का। तो उसमें मैंने सीबीएसई है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, सब बोर्ड हैं। आई रियलाइज कि कुछ बात है, कुछ तो बात है कि यूरोपियन एजुकेशन या अमेरिकन, सिंगापुर, जापान, इनमें काफी अच्छी पढ़ाई है अगर हम सच में ऑनेस्ट ईमानदार हैं। क्योंकि ज्योग्राफी तो देखिए एक मैप पे होती है। भारत देश का मैं, भारत हमारा देश है एंड आई एम वेरी प्राउड एज एन इंडियन, बट आई एम ऑल्सो, अब मैं अंधा भी नहीं हूँ कि मुझे नहीं दिखता है कि पढ़ाई की गड़बड़ है। तो मैं दुनिया का सबसे अच्छा बोर्ड पकड़ के ले आया। मुझे लगा कैम्ब्रिज महंगा है मेरे लिए, इट्स फॉर अ स्कूल, फॉर अस इट इज एक्सपेंसिव। बट जब मुझे लगा कि रियल पढ़ाई, मेरे बच्चे जब ये बड़े होंगे हमारे स्कूल के, वो कौन से स्किल्स होंगे जो उनको दुनिया में आगे उनके स्थान बनाए। फॉर दैट पर्पज आई रियलाइज कैम्ब्रिज वॉज एमिनेंट एज अ बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आजकल सबसे हॉट टॉपिक कुछ भी हो आखिर में आता है कोविड पे। तो कोविड की देखिए दवाई जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आई है। एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है, इट्स अ ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी। जो कोविशील्ड हमारे यहाँ बन रही है, इतनी लग रही है करोड़ों में, कहाँ से आई वो? इट कम फ्रॉम अ लैब इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ऐसे ही थोड़ी कोई कोई वैक्सीन बना लेता है, ऐसे थोड़ी कोई नोबेल प्राइज जीत जाता है, ऐसे थोड़ी कोई अच्छी पोएम लिख देता है। तो आई चोज द बेस्ट बोर्ड। फाइनली हमारी फिलोसफी कि आप पढ़ते ही क्यों हो। तो जैसे सिंधिया स्कूल ग्वालियर है, या ऋषि वैली से मैंने एक बहुत सुंदर चीज उठाई थी कि पढ़ाई का मकसद है सेल्फ रिफ्लेक्शन, आपको एक विचारशील इंसान बनाना। इफ इट कैनॉट टीच यू, यू आर जस्ट अ बीस्ट जिसने 4 किताबें फालतू पढ़ी है। तो आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस कि एजुकेशन मीन्स अ रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड। सो देयरफॉर उन स्कूलों से मैंने एक चीज उठाई थी, विच इज कॉल्ड अस्ताचल, जिसमें हम रात रोज शाम को रिफ्लेक्ट करते हैं अपने दिन के बारे में। माई टीचर्स इन स्कूल एंड स्कूल।
So in five parameters, because there's no other school which does this, I said we are the only international school, and we are the only boarding international. Okay, Boarding so it's only okay, so it's only boarding. only boarding school. हम डे स्कॉलर नहीं लेते हैं. तो Okay, उसका अलग चलिए अलग टॉपिक हो जाएगा वो तो इन okay. पांच So पैरामीटर्स एज आई टोल्ड यू कि मैं क्यों कहता हूँ प्लेनम सबसे अच्छा है, नॉट बिकॉज दिस इज आवर चाइल्ड बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ दीज फाइव इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स जिनको टेस्ट किया जाता right, right. It will be nice to visit your school someday, sir. And I, है. so to see it for myself, I'm sure it is something very very good. But sir, ये कैम्ब्रिज एजुकेशन, मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला 400 से ज्यादा स्कूल हैं इंडिया में जो कैम्ब्रिज एजुकेशन देते हैं. Yes. लेकिन मेरी जो जानकारी है वो है कि सीबीएसई है, आईसीएसई है. आई माई सेल्फ हैव स्टडीड इन एन आईसीएसई बोर्ड स्कूल, और बाकी और भी स्टेट बोर्ड्स हैं, बहुत सारे हैं. व्हाई कैम्ब्रिज एजुकेशन, and why do you think what you have set up is better and very very good in competition to a lot of people, other schools as such? ओके, तो देखिए कैम्ब्रिज ऑफ कोर्स बहुत सुंदर बोर्ड है. मैं एक फर्क बताता हूँ दोनों में. इंडियन बोर्ड्स आज के दिन उससे आपको बताया मेमोराइजेशन होती क्यों है. इंडियन बोर्ड आर कंटेंट बेस्ड. Okay, कंटेंट कि मान लीजिए इंग्लिश की किताब है, आपको किताब दे देंगे, आखिर में आपका पेपर जब बोर्ड का भी होगा उसमें से पैसे जाएंगे, उसके आप लिख देंगे, आपको घोटना है. यू हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट इज वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर और फलाना ठिकाना. आप वही बस याद कर लो क्योंकि उसमें है, कंटेंट में है. तो इंडियन बोर्ड्स आर कंटेंट बेस्ड. कैम्ब्रिज इज स्किल्स बेस्ड. स्किल आनी चाहिए आपको. okay. अगर मान लो ये है कि लिटरेरी डिवाइसेस क्या हैं, विच लिटरेरी डिवाइसेस आर बीइंग यूज्ड बाय द ऑथर. कोई किताब ही नहीं है कैम्ब्रिज की तो कहीं से भी पढ़ा लो फिर तो, और कहीं से भी एग्जाम आएगा. तो उसके लिए आपको स्किल आनी चाहिए वो. Okay, okay. एक और आपको एग्जांपल दे दूं, आपको समझ आ जाएगा. इंडियन बोर्ड्स में एक टिपिकल मैथ्स में क्वेश्चन होगा, ये इंडियन के हिसाब से, कि एक कमरा है, इसके लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये है, एक ईंट है उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये, इस कमरे को बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी. तो आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और ये बताना चाहिए कि इससे आपका आंसर आएगा. Right. कैम्ब्रिज या एक एनी इंटरनेशनल बोर्ड का सवाल होता है, ये कमरा है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, दिस इज अ ब्रिक, दिस इज द लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ द ब्रिक. टेल मी, शुड यू मेक अ रूम और शुड यू मेक अ टॉयलेट. Okay. ये तो पढ़ाई नहीं आपने की, तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा. सी, सो अगेन कैम्ब्रिज और इंटरनेशनल बोर्ड्स आर स्किल बेस्ड Okay. एंड इंडियन बोर्ड्स आर कंटेंट बेस्ड. एंड देयरफॉर अब कंटेंट बेस्ड है तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, आपको दिमाग नहीं लगाना उसमें. अगर स्किल बेस्ड है, दे विल टीच यू द स्किल्स, हाउ सॉरी दे विल टीच यू हाउ टू लर्न, नॉट व्हाट टू लर्न. सो कैम्ब्रिज और इंटरनेशनल या पढ़ाई, हम बाहर पढ़ के आया, मैं एमबीए करी, तो यू नो इवन इन फाइनेंस मेरे प्रोफेसर कहते थे भाई देयर इज नो राइट आंसर. Okay. हम टॉकिंग ऑफ माय एमबीए डेज. मुझे बहुत अजीब लगता था कि कैसे प्रोफेसर हैं यार फाइनेंस में, तो देयर इज अ राइट आंसर. तंग आके एक दिन फाइनेंस प्रोफेसर ने मेरे कहा, पंकज व्हाट डू यू थिंक इफ यू आर अ सीएफओ ऑफ अ कंपनी, when you decide कि रिसोर्स एलोकेशन कैसे करना है, इट इज अ डिसीजन. इट इज नॉट सिंपल कि एक्सेल शीट ने कहा है हर साल इतने पैसे लगाए जाओ. आपको इंडोनेशिया में फैक्ट्री लगानी है या आंध्र प्रदेश में, ये एक स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है. Right. दिस इज स्किल बेस्ड, इट इज नॉट कंटेंट बेस्ड. लाइफ, अब आप एक पेरेंट हैं, सपोज यू ग्रो अप टू बी अ पेरेंट एंड यू हैव ऑटिस्टिक चाइल्ड, जब ब्लाइंड बच्चा आपका पैदा हो गया, कोई किताब सिखाती है गए, क्योंकि हम कंटेंट बेस्ड हैं, हमें नहीं बताया जाता कि एम आई रेडी फॉर स्टडिंग इंजीनियरिंग या आई एम स्टडिंग फिलोसफी ऑनर्स. मैं थोड़ा सा और बड़ा हो जाता हूं बिकॉज मैं कंटेंट बेस्ड रहा हूं सारी जिंदगी. आई एम नॉट रेडी
कि आपको शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बिकॉज कंटेंट बेस्ड हो, स्किल बेस्ड नहीं हूं कि एक शादी करने के लिए स्किल्स लगते हैं, पेरेंट बनने के लिए स्किल्स चाहिए। और पेरेंटहुड में अगर ऐसा बच्चा पैदा हो जाए या वैसा हो जाए, या मैं पेरेंट में बच्चा भी हूं, कि व्हाट डज इट मीन टू बी अ चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट। अब पेरेंट बूढ़े हो रहे हैं, तो ये जब तक हम कंटेंट बेस्ड रहेंगे, कंटेंट कैन चेंज, एंड कंटेंट इतना ही आप समझ सकते हैं, स्किल्स सीखने की जरूरत है, हाउ टू स्टडी की जरूरत है, इसीलिए कैम्ब्रिज बढ़िया है एज अ बोर्ड। राइट सर, राइट। आई अंडरस्टैंड आपके स्कूल के बारे में, एजुकेशन के बारे में। नाउ कमिंग टू द एजुकेशन सिस्टम दैट वी हैव टुडे सर, यस, हमारे बच्चे बहुत नंबर्स ला रहे हैं, दे आर स्टडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट एक चीज जो मैंने महसूस की, आई कम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज, तो हमें को फिर भी पता है ठोकर लग गई तो उठना कैसे है, चोट लग गई तो उठना कैसे है, गिरना है जरूरी है, गिरने के बिना आप सेट दी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम पढ़ रहे हैं, बट इमोशनल इंटेलिजेंस का नहीं है कुछ, दैट वी कॉल इज ईक्यू, इमोशनल क्वोशिएंट, ईक्यू। IQ तो बहुत है। हाउ डू यू सी दैट? Because this is a big question mark today. Every year we get to see or learn about unfortunate cases of some students under so much of stress, and unfortunate events of suicides and all. I सुसाइड। want you to look at it purely from that wider level as well as macro level, sir. We got to correct this somewhere as we go along. Otherwise we may have a great future for people, but actually as individuals they will be lost. नो नो, विल बी अनहैप्पी। तो पहला तो आपका जो मैक्रो लेवल का क्वेश्चन था अबाउट द एजुकेशन सिस्टम एज सच, सो व्हेन आई लुक एट जैसे इंडिया की अगर बात करूं मैं, आई कैन टॉक इंडिया, तो जो मुझे एक बड़ी भारी कमी नजर आई है, टू थिंग्स दैट रियली नीड इमीडिएट अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन। उस पर मैं बाद में काम करूंगा, एक जब प्लेनम सेटअप हो जाएगा, देन दैट्स ऑन माय रडार। जैसे कि मान लीजिए मैं नेशनल हेल्थ केयर कमेटी में था, आई वाज वर्किंग विद जीई, और 2007-8 में या उसके आसपास 9 में आई वाज इन द नेशनल हेल्थ केयर कमेटी ऑफ दिस कंट्री, एंड ऑल दीज बिग हॉस्पिटल चेन्स जितने बड़े बड़े, अपोलोज, मैक्स, फोर्टिस, पारस, all of them were also members of that committee. My question to all of them always, and I used to sit down and think, was वो छोटी बात करते थे, टैक्स ये कम कर दो, वो कर दो, वो कर दो, दैट्स फाइन, इट्स इंपॉर्टेंट। पर मुझे लगता था कि what they should aim for is, how do you say पारस अच्छा है या मैक्स अच्छा है, मैक्स अच्छा है या मेदांता अच्छा है? What will decide that criteria? If Max is good, so be it. If Fortis is good, why not? But this is where we need to be. Similarly, education में कि स्कूल कौन सा अच्छा है, जो अच्छा है, they should be allowed to say आप जो मर्जी करिए, आप करिए ना, जितनी गलतियां करनी आप करिए, जितनी फीस रखनी है रखिए, जितना टीचर्स को देना है दीजिए, मत दीजिए, ये करिए। कुछ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऐसे आने चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं। दूसरा, व्हाट आई रियलाइज्ड स्कूल खोलने के टाइम पे, schools are only opened by societies, और वो सोसाइटी सब फैमिलीज होती हैं। अब फालतू में वो एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट कर दिया। व्हाई कांट आई बी एन इंडिविजुअल और अ कंपनी विच ओपन द स्कूल? पूरी दुनिया में कंपनीज आर ओपनिंग स्कूल। सिंगापुर में अलाउड है, आपके अमेरिका में अलाउड है, जर्मनी में अलाउड है। व्हाई कांट वी? ठीक है, आपको सोसाइटी करनी है, नॉन प्रॉफिट करना है, करने दीजिए, बट व्हाई इज इट नॉन प्रॉफिट? व्हाई इज प्रॉफिट अ बैड वर्ड? हमें कहना चाहिए आप ईमानदारी से करिए। आप चाहे आटे की चक्की चलाइए, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज बनिए, कुछ भी करिए, आप चाहे स्कूल चलाइए, आप ईमानदारी से काम करिए, खूब पैसे बनाइए। द बैड वर्ड शुड बी मेकिंग अ लॉस, मेकिंग अ प्रॉफिट शुड नॉट बी अ बैड वर्ड। So I have a fundamental disconnect with having a school being run by a non-profit society.
इट्स अ स्टूपिडिटी, इट्स अ आर्टिफिशियल स्टूपिडिटी, इसको हटा देना चाहिए। आपने हाँ करना है, चैरिटी करनी, करिए ना चैरिटी, आप चैरिटी स्कूल खोल, अगर आप कंपनी बनाए खोलना है तो करने दीजिए। Lending becomes easier today. There's no money for schools because of this non-profit business. ठीक है, तो ये तो है मैक्रो लेवल। Hmm. परंतु जो आपने ईक्यू और आईक्यू का क्वेश्चन पूछा, विच इज अ वेरी रेलेवेंट एंड गुड क्वेश्चन, तो स्कूल इज वन एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड और सोसाइटी। ये दिस इज अ थ्री लेगेड स्टूल, तीन Hmm. टांगे हैं इसमें। एक है बच्चा, एक है पेरेंट, एक है स्कूल। Now, to produce wonderful citizens of tomorrow, to produce very well-rounded individuals, हमारे बच्चे वर्ल्ड क्लास और खुश हों अपनी स्किन में, टू प्रोड्यूस दैट सबसे पहला रोल होता है फैमिली। इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सपेक्ट कि जिस घर में टीचर्स को बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती है, Hmm. आप स्कूल के बच्चों की, टीचरों की, स्कूल की इज्जत नहीं करते हैं, माँ बाप अगर स्कूल के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट अ यंग चाइल्ड टू Right. इम्बाइब गुड वैल्यूज। महाभारत में दो लाइनें आती थी, सुना दूं आपको, कि बिल्कुल सर। देने वाला एक है, ठीक है, देने वाला तो वही है, देने वाला एक है, समदर्शी भगवान। महाभारत सीरियल में आया करता, महेंद्र कपूर साहब गाते थे, देने वाला एक है, समदर्शी भगवान, वो तो सबके लिए बराबर है, जिसकी जितनी पात्रता, जिसकी जितनी पात्रता उतना उसको ज्ञान। Right. अब देखिए, मेरी पात्रता नहीं है, मैं गाली दे रहा हूं स्कूल को, मैं टीचर्स को गाली देता हूं, मैं समझता हूं कि मैं फीस दे रहा हूं तो वो मेरे नौकर हैं। तो ऐसा बच्चा घर से ये सीख के आ रहा है कि ये स्कूल भी एक नौकर है, वो गलत आइडियाज सीख रहा है। When you come out with great bad ideas, बहुत मुश्किल होता है। स्कूल के लिए एक्सपेक्ट करें स्कूल इसको सिखा देगा। तो इन तीन लेगेड, जो ये तीन पैरों वाला स्टूल है, पहला तो बच्चा, उसके मन में आना चाहिए यस दिस एजुकेशन, आई एम सो प्रिविलेज्ड कि मुझे इस गरीब देश में पढ़ने को मिल रहा है। बहुत सारे बच्चों को पढ़ने को भी नहीं मिल रहा है, Absolutely, वो sir. बेचारे बचपन से ही बोझा ढोते रह जाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ढाबों पे काम करते हैं, घरों में काम करते हैं। इट्स अ प्रिविलेज टू बी एबल टू गो टू अ स्कूल, इट्स अ प्रिविलेज, Right. इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। पेरेंट्स नीड टू रियलाइज इन अ वाइडर लेवल कि आप कहीं भी गए हैं, आपने कोई सर्विस का पैसा दिया है, तो दूसरा आदमी आपका नौकर नहीं होगा। तमीज रखिए, और खासकर थिंग्स लाइक स्कूल टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, ये बहुत नोबेल प्रोफेशन है। तो इसका जब तक आप इज्जत नहीं करेंगे, आपके बच्चे नहीं करेंगे। अब रहा स्कूल में, मैंने स्कूल में देखा, मैं कहता हूँ ना, जैसे वाटर फ्लोज डाउन हिल। अगर एज अ फाउंडर मेरा ऑब्जेक्टिव ही स्कूल खोलने का, ब्लैक मनी को वाइट करना है, तो मैं अपने टीचरों को भी दुखी किए रखूंगा, मैं उनसे उल्टे काम करवाऊंगा। उल्टे काम कराऊंगा तो बच्चे को पढ़ाना उनके लिए बहुत मुश्किल है, एक अच्छी वैल्यूज देना बहुत मुश्किल है। तो वैल्यू एजुकेशन कम्स फ्रॉम द टॉप गाय। आई ट्राई टू सेट दी ऑब्जेक्टिव कि वैसे मैं कितना भी घटिया आदमी हूं, लेकिन हाँ, आई ट्राई टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, बिकॉज इफ माई टीचर्स कैन बिलीव कि ऐसे आदमी ठीक है, it is my job to ensure that they believe this. So my teachers will then contribute same thing. So Right. IQ and EQ में यही है मेरा कि इमोशनल क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम जो करते हैं वो अस्ताचल, जो एक्टिविटी हम कराते हैं, वी आर वेरी प्राउड कि हम शाम को जब बैठते हैं, वी ट्राई टू रिफ्लेक्ट आंखें बंद करके। और मुझे मालूम है बहुत डिफिकल्ट एक्टिविटी है, इट इज नॉट ईजी, परंतु मानना यह है कि कुछ बच्चों को फायदा होगा, कुछ मेरे टीचर्स को भी फायदा होगा अगर वो ईमानदारी से ये कर लें। तो जो आपका क्वेश्चन है, तो एंड ऑफ कोर्स एट अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल लेवल, अरे आईक्यू और ईक्यू में भी कोई झगड़ा नहीं है। आपका बहुत अच्छा, आइंस्टाइन थे, उनका आईक्यू भी बहुत अच्छा था, ईक्यू भी बहुत अच्छा था। Hmm. तो यू कैन हैव बोथ, बट यस
Emotional quotient, emotional understanding is extremely important and key to becoming a more centered human being. Or as a centered human being will always find himself or herself to be successful, irrespective of क्या कर रहा है. तो सर बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कौन बताएगा? स्कूल बताएगा, पेरेंट्स बताएंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम बताएगा? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रही है सर. Right. And this is a big question, especially with the advent of so many things. आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स को आप पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन बच्चों को हम नहीं पढ़ा रहे. मशीन्स को इमोशन ज्यादा समझ में आ रहा है. नहीं तो वही है ना कि देखिए, मैं तो प्लेनम की बात कर सकता हूं. हमारे बच्चे करें ना करें, पर हम तो करने करते जाते हैं. हमारे जो स्कूल में जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स वो करें या ना करें, आई एम वेरी क्लियर, it will not distract the plenum school from doing its bit. Plenum school करेगा वो. और हमारा मानना ये है कि थिंग रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, हर रोज बच्चा जब ये समझेगा. दूसरी बात देखिए, थोड़ा बच्चों को क्रेडिट देना पड़ता है. यू हैव टू बी पेशेंट विद चिल्ड्रन, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल एंड लविंग ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चा है वो. देखिए वो बेवकूफ़ी भरी बातें भी करते हैं, शरारत तो करना उनकी नियत है. तो यू टू अंडरस्टैंड इट्स ओके, इट इज ओके. वो बच्चा है यार, वो शरारत नहीं करेगा, उसके दादाजी थोड़ी करेंगे यहाँ पे हमारे यहाँ. लेट हिम हिम और हर, as long as it does not trouble other children, it does not trouble my teachers. Personally, I'm very, very okay with people being naughty, if children being stupid, if children being whatever, children. बच्चे तो हमें समझना पड़ेगा. तो ये बड़ों का रोल ज्यादा आ जाता है EQ में कि, and at my level I try to say कि okay, whatever it is, the plenum school will always continue to do what it's supposed to do. We cannot sit कि पेरेंट ने ऐसे कहा या बच्चा बड़ा घटिया. मेरे को टीचर नहीं ऐसा लगेगा कि बच्चे बेकार हैं. ठीक है ना, Right, sir. बच्चे तो बेकार होते हैं, हम बेकार हैं, हमारे को समझाना नहीं आ रहा है. Right. So Right. Now, asking from the parent's point of view, sir, here, how do a parent decide which school is good? या इंग्लिश स्पीकिंग वाले स्कूल वो ज्यादा अच्छे हैं, और देयर आर सो मेनी स्टेट बोर्ड्स, आप केंद्रीय विद्यालय ले लीजिए, और भी बहुत सारी जगह हैं. पीपल आर इन टर्म, अगर आप रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं. अगर आप एक सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं कि and they can stand to adversity, it has been seen also कि छोटी जगह के बच्चे हैं, they can stand to more adversity. तो वो अच्छे हैं. तो पेरेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हाउ डू दे मेक आउट कि भाई ये स्कूल अच्छा है, दिस इज द प्लेस फॉर माय चाइल्ड. इंग्लिश से नहीं होगा. इंग्लिश यू कैन लर्न, नॉट मैटर एक्चुअली. no, it doesn't. See, language को language, अगेन मैं कह रहा हूँ सब हमारी है. तमिल भी हमारी है, इंग्लिश भी हमारी है, जापानीज भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है. इट्स अ लैंग्वेज. हाँ, ये और हम एक छोटे से इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतने बड़े यूनिवर्स में छोटे से अर्थ है, अर्थ का छोटा सा पार्ट. सो वी ओन दिस अर्थ. ये हमारी शेयर्ड ज्योग्राफी है, हमारा शेयर्ड कल्चर है, हमारा शेयर्ड यूनिवर्स है. सो बट दैट इज वन पार्ट. बट व्हाट आई एम सेइंग इज पेरेंट्स आर कंफ्यूज्ड. अनफॉर्चुनेटली क्या है कि मैं ब्रॉडली अगर बताऊं, लेफ्ट टू माई सेल्फ, how I decided for myself or my children, I can tell that if that is the Right. answer. My children, because me and my wife both were civil servants, Manisha भी civil servant है, they were studying in Sanskriti school Delhi. अब संस्कृति स्कूल में it's probably one of the topmost schools in the country. एडमिशन नहीं मिलता है केजी में, किसी को एडमिशन ही नहीं मिलता है. तो हमारे बच्चे वहाँ थे, एंड वी वर स्टेइंग इन खेलगांव, एशियन विलेज. साथ में स्पोर्ट्स ग्राउंड भी है, सेफ भी है, सुंदर भी है, ग्रीन भी है, सब कुछ. So and we were giving a lot of time to our children. But even then we found सर्वांगीण विकास और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हॉस्टल जरूरी है. ओके. ये कोई भी पेरेंट हो, कितना भी इन्वॉल्व हो, कितना भी कैसा हो, इट इज डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल ही कह लो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट इन अ डे स्कूल.
बोर्डिंग स्कूल इस मामले में, अगर आप सचिन तेंदुलकर हैं, अगर आप लता मंगेशकर हैं, अगर आप ऐसे हैं जो यूनिक टैलेंट के साथ पैदा हुए हैं, आप हॉस्टल मत जाइए, बिकॉज उसके लिए आपको एक्स्ट्रा आवर्स लगेंगे, वो सब लगेगा जो हॉस्टल में पॉसिबल नहीं है। पर अगर एक नॉर्मल इंसान है मेरे आपकी तरह, तो मैं कहूंगा हॉस्टल की लाइफ सबसे अच्छी है, बिकॉज आपको टीम वर्क सिखाती है। जो आपने बात की सेटबैक्स को लेना, भाई आप एक छोटे बच्चे हैं, मे बी यू आर वेरी गुड इन मैथ्स बट यू आर नॉट वेरी गुड इन एथलेटिक्स, तो आपके राइट। रूममेट आपका खूब मजाक उड़ाएंगे, यू नो। तो मजाक उड़वाना, वो सीखना, वो चीज को सीखना कि आई मे नॉट बी द बेस्ट एट एवरीथिंग, इट बिल्ड्स कैरेक्टर। हम्म। फिर एवरीथिंग इज अबाउट टीम वर्क, एवरीथिंग, नथिंग। यू, मैंने बताऊं प्लेनम स्कूल है इज बिकॉज आई गॉट अ वंडरफुल बंच ऑफ पीपल बैकिंग मी। कोई भी चीज अकेले आदमी वर्थवाइल जो चीजें नहीं बना सकता, वर्थवाइल चीज को बनाने के लिए टीम चाहिए, बढ़िया टीम। हॉस्टल में रह के आप टीम वर्क सीखते हैं, अपने दोस्तों के साथ कैसे रह रहे हैं, वो उसका थोड़ा होमवर्क करवा दिया, उसके कपड़े धुलवा दिए, साथ ट्रैकिंग पे चले गए, खेल लिए इकट्ठे, मजाक इकट्ठे किए, गाने अच्छे गाए, यू नो, यू गेट व्हेन यू बिकम ओल्डर टुगेदर, वो जॉय, वो जो टीम है, सबसे अच्छी टीम होगी। तो पहली बात, अच्छे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यू शुड ऑलवेज कंसिडर अ हॉस्टल। राइट। दूसरा, अब जो मैंने 5 बात बताई कि बेस्ट फाउंडर, बेस्ट लोकेशन, बेस्ट ये, बेस्ट बोर्ड और अफोर्डेबल होना, ऑफ कोर्स राइट। यू आल्सो हैव टू राइट। सी योर पॉकेट, हम्म। बिकॉज आई फेल्ट जैसे मिशनरी स्कूल्स हैं किसी भी सिटी में, दे आर वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी स्कूल्स। राइट। केंद्रीय विद्यालय हैं, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं केंद्रीय विद्यालय। If you can get an admission and if you cannot afford to pay more, तो केंद्रीय विद्यालय you should look at, you should look at a missionary school. तो there are a lot of good schools for a niche. परंतु हाँ, अगर आप लाइफ को देखेंगे, लाइफ कैसे जा रही है 21st सेंचुरी में या बियॉन्ड, हाउ इज लाइफ, किस चीज को रिवॉर्ड कर रही है ये इकोनॉमी? इट इज रिवॉर्डिंग क्रिएटिविटी, इट इज रिवॉर्डिंग इमेजिनेशन, इट इज रिवॉर्डिंग टीम वर्क, इट इज रिवॉर्डिंग करेजियसनेस। ये चीजें आपको, और ये हॉस्टल में और ऐसी चीजों में ज्यादा समझ, तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं। बट पेरेंट्स गेट कंफ्यूज, वो बस स्विमिंग पूल के चक्कर में पड़े रहते हैं कि इस स्कूल की बिल्डिंग मालिक आपको स्कूल नहीं दे रहा है। आई कीप टॉकिंग टू पेरेंट्स, आई जोक विद देम कि भाई साहब, ये जो इतना बड़ा आपको फैंसी स्विमिंग पूल मिल रहा है या गोल्फ कोर्स स्कूल में मिल रहा है ना, आपकी फीस में लगता है, और इसका राइट। आपका बच्चा कोई टाइगर वुड्स नहीं बन रहा है, या तो हाउ टाइगर आई एम। वुड्स देखिए, अरे बच्चे ने जाना है पढ़ने वहां, अब गलत फहमियां डाल रहे हैं कि जीवन ऐसा होता है। सो देयर हैज टू बी अ मैच ऑफ एक्सपेक्टेशंस, अ मैच ऑफ व्हाट अ पेरेंट कैन पे, एंड थोड़ा बहुत यू नो ध्यान से कि भाई मेरे बच्चे का फ्यूचर है, थोड़ी स्टडी को पेरेंट्स को भी करनी पड़ेगी। Absolutely. Absolutely. Well put, sir. Now, one of my last questions, sir. आपने तो शुरू से देख लिया, लर्निंग भी काफी की, और अब है, स्कूल बनाते वक्त भी काफी लर्निंग हुई, अभी भी सीख ही रहे हैं। एंड आपने अच्छी बात भी बोली कि टीचर्स को सबसे बड़ा तो दे हैव टू बी लर्नर्स देमसेल्व्स एंड ऑल थ्रू, इट विल नेवर एंड। आज स्कूल बनाते वक्त जो लर्निंग बिकॉज हुई है, मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूं, सर। A lot of youngsters are moving into startups, and they are providing not only what you call becoming founders of schools, but they're also providing a lot of services to schools. यस, uh, ed tech देख लीजिए, और भी सारी चीजें आ रही हैं राइट। purely from making a school come up like a child. What are your tips for people who are aspiring to be founders of schools in the coming days? ओके, सो पहला तो आपको लीगल उस पर देखना पड़ेगा, यू वांट टू सेट अप अ सोसाइटी और अ ट्रस्ट और सेक्शन 8। आपका अगर एम नेशनल है, जैसे मेरा एम नेशनल और ग्लोबल है, तो मैंने नेशनल सोसाइटी बनाई है। अदरवाइज अगर आपका एम है एक ही स्कूल बनाना है या एक स्टेट में, हरियाणा में या दिल्ली में बनाना है, तो हैव अ स्टेट सोसाइटी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके विजन से मैच कर रहा है। आपका विजन क्या है, आपको 10 स्कूल खोलने आंध्रा सब जगह, तो नेशनल सोसाइटी बनाई है। फिर
अगर ये पार्ट आपका क्लियर हो गया, देन ऑफ कोर्स लैंड लीजिए. लैंड आजकल रिक्वायरमेंट्स आर सीबीएसई कंट्रोल्ड एंड वेरी सिंपल. दे आर ऑल ऑनलाइन, एक एकड़ टाइप है. देन ऑफ कोर्स यू नीड टू अगेन थोड़ा सा अपने आप से सवाल पूछना पड़ता है, मैं स्कूल खोल भी क्यों रहा हूँ? व्हाई द हेल एम आई गेटिंग इनटू दिस? इट्स अ डिफिकल्ट फील्ड. बहुत मुश्किल है ये इंडस्ट्री भी, बिकॉज पेरेंट्स हैं, टीचर है, रोज बच्चे हैं, शरारते हैं. सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर देयर. देन यू टू सी किस तरह का स्कूल, नेशनल और इंटरनेशनल, तो उसके हिसाब से एफिलिएशन लेंगे. आपकी लैब्स वैसे सेटअप होंगी, आपके टीचर की ट्रेनिंग वैसी होगी, खर्चा कॉस्ट स्ट्रक्चर वैसे होंगे. कैम्ब्रिज या इंटरनेशनल की बुक्स महंगी हैं, मिलती नहीं है, बोर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड हैं थोड़े, ट्रेनिंग पे बहुत पैसा लगता है. सो यू हैव टू कंसिडर ऑल दीज. देन फाइनली आई थिंक अगर आप बिल्कुल मूड में हैं तो प्रिपेयर योर सेल्स कि देर माइट बी कंसल्टेंट्स जो आप पे काम करवाएंगे. काफ़ी सारे वो लगते हैं आपको, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर तो Right. बहुत एनओसीज लगते हैं सरकारी डिपार्टमेंटों से. बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. अगर आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो दिन रात आपकी, मतलब इट्स अ फुल टाइम एक्टिविटी. इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे. या करना चाहते हैं तो फिर मेरे जैसे कंसल्टेंट को पकड़ लीजिए. मैं अपनी नॉट दैट आई एम फ्री एंड अवेलेबल, बट यस, you know, so it needs a lot of work on approvals from government, these campus approvals like the right, and then you're up and running. और पिछले पहले 5-7 साल आप कुछ नहीं कमाएंगे, डालेंगे उसमें बस. इस आइडिया से स्कूल खोलिएगा तो स्कूल Right. चलेगा. राइट सर, समझ गया. द गिविंग बैक टू सोसाइटी आपका ये मिशन है. ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट सम मोर मनी इन योर लाइफ. यू ऑलरेडी हैव एनफ, इफ आई कैन अंडरस्टैंड. ये you have made some change maker society. If you can, this is my last question, if you can tell us more about this, what this is all about. तो मैंने बताया जैसे हम गांधी जी से प्रेरित थे. गांधी जी ने कहा था बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. तो Okay. उससे हम देंगे बी द चेंज. दूसरों को मत बोलिए, आप कहेंगे. तो बी द चेंज में हम 25 टाइप लोग हैं. कुछ आईएएस ऑफिसर्स हैं, 5 आईआईटीएंस हैं, आईआईएम ग्रेजुएट्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, मर्चेंट नेवी के ऑफिसर्स हैं. तो एक तो जो भारत के बेस्ट एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंसान, वो लोग. दूसरा, देयर आर लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, 5-6 उनमें से ऐसे भी हैं. और सोशल फील्ड के लोग हैं, who are in the social sector. So this is the society which has started the school. All of them are, I'm very thankful to them. इनको मेरे जैसे मैवरिक पे भरोसा हो गया, क्योंकि या तो वो किसी पागल वाले मूड में होंगे या मैं you कन्विंसिंग. need you need a maverick to change the world, sir. I guess so, but you know, I'm so thankful कि उन लोगों को, मेरे से ज़्यादा स्मार्ट भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं. ऐसा नहीं है कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो आईआईटीएंस हैं, ऐसे लोग हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड. ऐसा भी नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं हैं. मेरे से स्मार्ट भी हैं, पैसा भी ज़्यादा कमाते हैं मेरे से, यू नो, इन एनी पैरामीटर. सो आई वाज सो थैंकफुल. सो आई एम प्रिविलेज्ड that they accepted me, they had faith in me, they keep still, you know, ऐसा लगता है स्कूल में, so they still support me. So, you know, I'm so thankful to them. ये है change maker society, because we want to create this change in this world. So you So want to this, open more schools, sir, more yes, plenums. yes, Plenum will go all across India में इंशाल्लाह, और बाहर भी जाएगा. Okay. भारत से Okay. will, So जहाँ उसका जहाँ जहाँ रोशनी की कमी लगी वहीं चिराग एक जला. उसकी सर कोई टाइमलाइन सेट की है आप लोगों ने, नंबर ऑफ स्कूल्स की? देखिए, नहीं टाइमलाइन नहीं है, बट व्हेन आई लुक एट माय फ्रेंड्स हु सेट अप स्कूल्स, आई नो मिस्टर गौतमपुरी हैं, वो कौन सी करियर लॉन्चर के वाइस चेयरमैन हैं. आई नो व्हेन Right. दीस गाइस गॉट इनटू बिजनेस एंड स्कूल, विद इन 18-20 ईयर्स उन्होंने 10-15 स्कूल खोल लिए. Right. तो मतलब, एंड हियर तो मैं 24 घंटा इसी में ही हूँ, स्कूलों में ही. तो पहला जो मेरा आइडिया है कि पहला स्कूल में टाइम टू बिकम अ बिलियनियर, द फर्स्ट मिलियन इज टफ. एक बार मिलियन आ जाए, देन यू आर ऑन द रोड. तो माय सेंस इज विद इन द नेक्स्ट, या ये स्टेबल होते ही, आई थिंक विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट. सो विद इन 2-3 years वी माइट एज वेल बी स्टार्टिंग ऑन आवर नेक्स्ट.
एंड 2 एक साल में हम स्टेबल हो जाएंगे यहाँ पे। So because the idea was never to make money for myself, idea is to make a lot of money in Planum School. Let's be very clear. बहुत पैसा कमाएंगे हम, और वो पैसे से हम वो स्कूल्स खोलेंगे, अपने टीचर्स में इन्वेस्ट करेंगे, बच्चों में इन्वेस्ट करेंगे. तो we'll keep on opening more schools in places. So that's it. Right, sir. Right. So be the change that you want. Any closing thoughts, sir? No, once again, thank you so much, Aapne, Ajay. Your questions were very insightful. I really enjoyed. I hope your viewers and whosoever is who cares to listen to this podcast derives value out of this. जो गलतियां हैं वो सारी मेरी हैं. आपके सवाल बहुत अच्छे थे. So I must admit that. Whatever No. I could not explain, this problem is mine. Again, I'm thankful to my team and change makers and our teachers and the parents who had trust to send their child in a boarding school in a jungle, एक startup school है. And thank you so much. I wish your broadcast and your listening a lot of success. And it's been a pleasure talking to you. Thank you so much, sir. As I said, I take this learning, a lot of learning from you, and a lot of people also will certainly take it from you across the country. Entrepreneurs, potential founders of new schools, and that's what education means. The biggest learning is, as you reiterated, that be the change that you want to. On this note, sir, on this note, it's a wrap on this edition of the KAJ Masterclass. Thank you very much. Thank you, Ajay. Thank you so much.